Good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. Students, revise chapter 1 and 2 of civics and do listen the video carefully and do the worksheet in notebook. Students, today we will continue chapter 1 of history, that is how, when and where. Students, in previous virtual class we have discussed what is history. History is certainly about changes that occur over time. हिस्ट्री हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स? ये बताती है कि पास में चेंजेस क्यों हुए और उसके कारण क्या थे. स्टूडेंट्स, जेम्स विल डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 3 periods: हिंदू, Muslims and Christians. This periodization has a limitations. What is its drawback? Its drawback it is based on religion. This division is based on religion than the development of the country. So moving away from this periodization, historian have divided history into 3 periods: ancient history, medieval history and modern history. एशियंट हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट? इसके बारे में आपने पढ़ा है 6th क्लास में. इन एशियंट टाइम ह्यूमन बींग्स वर लिव्ड इन फॉरेस्ट, they were hunter gatherers. In 7th class you studied about medieval history. In medieval history you studied about Mughal periods, Babur, Humayun, Akbar, and last Mughal emperor was Aurangzeb. He was died in 1717. This year you will study about modern history. In modern history you will study student when Britishers came to our country, how they ruled our country, why we revolted against the Britishers, and when our country got independence from the British rule. Student, today I am going to explain what is colonial rule. स्टूडेंट, आप अपनी नोटबुक में मार्क भी करें जैसे आपको दिखाया गया है. व्हाट इज कॉलोनियल रूल? when the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, this is known as colonization. स्टूडेंट, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने क्या किया? दे won our territories, they defeated the kings, so political powers gone into the hands of the Britishers, and they put more taxes on farmer, on industrials. It led to economic changes, and also during their rule there were many social, economic cultural changes. Student, this period is known as कलोनियल पीरियड, कलोनियल रूल. तो कलोनियल रूल क्या है? जब किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री अपने अंडर कर लेती है और उसमें कई पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो चेंजेस आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कलोनियल रूल. इसमें जो रूलिंग कंट्री है उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है और जिस पर रूल किया जाता है दैट कंट्री बिकम पुअरर एंड पुअरर. इट वॉज हैपन्ड विद आवर country. Students, now Britishers ruled our country about 250 years. ठीक है. So how we will know कि कैसे उन्होंने रूल किया, किस तरह से किया, what things help us. तो हमने क्या स्टडी करना है? what sources help us to know about the British period. तो first thing is administration produces रिकॉर्ड्स. स्टूडेंट, जो आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है, जो अंडरलाइन की है, आपको भी बुक में ऐसे ही मार्क करना है. तो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, investigation had to be clearly written up. Once this was done,
थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। ब्रिटिशर्स किस बात में बिलीव करते थे? हर पॉलिसी को, हर प्लान को लिखा जाना चाहिए, फिर हम उसको बाद में अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स and letters needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all the administrative institutions। उन्हें क्या लगता था ब्रिटिशर्स को कि दे बिलीव्ड इन राइटिंग, हर प्लान को, पॉलिसी को लिखा जाना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व भी करना चाहिए। और हर जैसे विलेज तहसीलदार है, कमिश्नर ऑफिस हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। रिकॉर्ड रूम्स का क्या मतलब स्टूडेंट? हर ऑफिस में, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस है, एक रूम रखा जाता था, बनाया जाता था, जहाँ पर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता था। स्टूडेंट, लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th कैन बी स्टिल रेड इन द आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या है? इन जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, कहाँ रखे जाते थे? रिकॉर्ड्स रूम में। सो specialized institutions were made during the British periods. Archives, museum were established to preserve important documents, to preserve, to keep important records। तो स्टूडेंट्स, जब राइटिंग, उन्होंने कहा राइटिंग को इम्पोर्टेंस दी, रिकॉर्ड बनाने को इम्पोर्टेंस दी, तो उन्होंने ये भी कहा इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व भी किया जाए, संभाल कर रखा भी जाए। तो कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए जहाँ पर इन रिकॉर्ड्स को रखा जाता था, जैसे म्यूज़ियम, आर्काइव्स। आर्काइव का स्पेशल प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, एक ऐसा रूम, एक ऐसी बहुत सी बड़ी जगह जहाँ पर रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्काइव्स। स्टूडेंट्स, इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists। क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ये रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, लेटर हाथ से लिखे जाते थे, और कुछ एक को कॉपी करने के लिए भी कहा जाता था। और कौन कॉपी करते थे? जिनकी राइटिंग सुंदर होती थी, 2-2, 3-3, 4-4 उसकी कॉपीज बनवा कर रखी जाती थी। कैलीग्राफिस्ट किसे कहते हैं? दोज हु हैव स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, दोज पीपल आर नोन एज कैलीग्राफिस्ट। तो कुछ रिकॉर्ड्स की कई कॉपीज बनाने के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने कैलीग्राफिस्ट को अपॉइंट किया था कि इसकी 3-4 और कॉपीज बनाकर रख लें। Students, by the middle of 19th century, with the spread of printing press, multiple copies of these were printed as proceedings of each government department। जब प्रिंटिंग प्रेस का स्प्रेड हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हो गई, तो उसके बाद कई कॉपीज़ को बनाना आसान था, मल्टीपल कॉपीज़ उसकी बनाई गई। और स्टूडेंट देखिए, आपको एक पिक भी दिखाई गई है, ये पिक किसकी है? नेशनल आर्काइव की। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव्स बोथ वर लोकेटेड टू द वायसराय पैलेस। जैसे हमारे यहाँ हमारी कंट्री के हेड प्रेसिडेंट हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हेड ऑफ द कंट्री कौन होते थे? वायसराय। और उनके पैलेस के साथ म्यूजियम भी है और आर्काइव भी। अगर आप अब भी कभी दिल्ली जाएं तो वहाँ आप नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूजियम को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं ब्रिटिश पीरियड्स के, जो आज भी वहाँ पे प्रिजर्व हैं, केयरफुली वहाँ पर प्रिजर्व्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, सी दी पिक्चर ऑफ नेशनल आर्काइव। कहाँ पर है ये बिल्डिंग? ये है दिल्ली में बनी हुई है। स्टूडेंट्स, उसके बाद है ब्रिटिश पीरियड को जानने का नेक्स्ट वे क्या था? सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट। ब्रिटिशर्स किस बात पे बिलीव करते थे? सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। द ब्रिटिश बिलीव दैट a country had to be properly known before it could be effectively administered। अगर हमें कहीं रूल करना है तो सबसे पहले उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट 2 लाइन्स हमने अंडरलाइन की हैं, आप भी इसी तरह से अपनी बुक में मार्क करें।
By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. अर्ली 19th सेंचुरी में कई सर्वे किए गए, जैसे विलेज में सर्वेस किए गए, तो उनका क्या पर्पस था? टोपोग्राफी, टाइप ऑफ सॉइल कैसी है, फ्लोरा एंड प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे कैसे हैं, सो दे कैन प्रॉपर वे पुट टैक्सेस ऑन फार्मर्स. और फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी स्टूडेंट्स क्या हुआ? सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स. सेंसस का क्या मतलब होता है? डिटेल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. आज भी 1872 में स्टूडेंट फर्स्ट सेंसस किया गया था, और उसके बाद से हर 10 ईयर्स के बाद हमारी कंट्री में सेंसस कंडक्ट होते हैं. सेंसस का क्या मतलब होता है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. जैसे अब 2021 है, लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके घर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आ रहे थे. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हाउ मेनी आर अर्निंग, व्हाट इज, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर. सो व्हाई सर्विस वर कंडक्टेड स्टूडेंट, वाई सर्विस आर कंडक्टेड? इनका पर्पस ये होता है कि हम उसके बेस पे अच्छे ढंग से पॉलिसीज को बना पाएँ. तो हम यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स रूल्ड आर कंट्री अबाउट 250 years. So what sources help us to know about that period? तो first thing is एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स जो उस समय मेंटेन किए गए थे वो हमें ब्रिटिश पीरियड के बारे में बताते हैं. दूसरा जो सर्वे किए गए वो बताते हैं. और थर्ड स्टूडेंट यहाँ दिया गया व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑफिशियल रिकॉर्ड स्टूडेंट्स बनाते क्या हैं. देखिए लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है, लास्ट लाइन में, दे टेल अस व्हाट ऑफिशियल थॉट एंड they were interested in and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. जो हमारे रिकॉर्ड हैं जो गवर्नमेंट ने मेंटेन किए हुए हैं वो ये बताते हैं कि ऑफिशियल सोचते क्या थे और वो क्या चाहते थे और क्या बताना चाहते थे कमिंग जनरेशन्स को, वही हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं. पर एक्चुअली आम लोग कैसे थे, उनके थॉट्स क्या थे, उनके बारे की जानकारी ये हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं देते. तो क्या ऐसा है? तो इट मीन्स व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल्स, एक्चुअल फैक्ट्स को नहीं बताते. ये वही बताते हैं जो ऑफिसर्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं. अगर हमें एक्चुअली उस समय के बारे में जानना है तो क्या चीज़ जरूरी इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी? सीन्स सेकंड पैराग्राफ, और ऐसे आप अंडरलाइन भी करें बेटा जैसे हमने कर रखा है. वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars. तो ये हमें उस समय के आम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. पर स्टूडेंट्स ये जो हम कहें ऑल दीज सोर्सेस हाउएवर प्रोड्यूस्ड बाय दोस हु वर लिटरेट, ये जो रिकॉर्ड्स हैं जो बने हुए हैं ये किसके बारे में? लिटरेट लोगों के बारे में बताते हैं. फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स पीपल, peasants, farmers, workers in the mines और poor people, workers in the mines. इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. तो स्टूडेंट्स हमने क्या स्टडी किया इस लेसन में? हमने स्टडी किया हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस ओवर टाइम, कि पास्ट में चेंजेस कैसे हुए और उसके रीजंस क्या थे, ये कौन बताता है? हिस्ट्री. जेम्स मिल ने हिस्ट्री को डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश. और इसकी कमी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और moving away from the James Mill periodization, historian have divided history into how many periods? 3 period: Asian period, medieval period and modern period. This year
In 8th class, you will know about which period? Modern period. और modern period क्या था? When Britishers came, how they came, how they ruled our country. और हमने पढ़ा कि अगर हमें ब्रिटिश पीरियड के बारे में जानना है तो हमें क्या, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हैं वो हमें हेल्प करते हैं, और दूसरा जो ब्रिटिशर्स ने सर्वे किए हैं वो हमें बताते हैं। स्टूडेंट, सर्वे एक्चुअल फैक्ट जो हमें रिटन रिकॉर्ड्स है वो नहीं बताते। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वही उसी ढंग से रिकॉर्ड बनवाए जो वो चाहते थे आगे आने वाली जनरेशन उनके बारे में जाने। कई बार जैसे कहीं रिवोल्ट हुए उसके बारे में भी ब्रिटिशर्स ने सही ढंग से नहीं लिखा। जैसे आपकी बुक में एक जगह दिया गया है कि कई शिप्स में रिवोल्ट हुए तो उन्होंने कहा दीज वर कंट्रोल्ड और अंडर देयर कंट्रोल, और एक जगह लिखा है कि नॉट फिट फॉर कुछ जो रिवोल्ट प्रॉब्लम। एक जगह दिल्ली के कितने 2000 पुलिसमैन ने रिफ्यूज कर दिया टू टेक दी फूड, तो दे सेड दे वर नॉट टेकिंग फूड, दे प्रोटेस्टेड बिकॉज द क्वालिटी ऑफ फूड वाज नॉट गुड। पर एक्चुअली क्या था? देयर सैलरी वाज लेस, सो दे रिफ्यूज। क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी खाने की, पर एक्चुअली रीज़न था कि सैलरी कम थी और क्वालिटी ऑफ फूड वाज नॉट गुड, सो दे प्रोटेस्टेड। पर उन्होंने सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड्स में लिखा है कि दिल्ली में 2 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरी। था तो उनका प्रोटेस्ट था लो सैलरी एंड बैड क्वालिटी ऑफ फूड, पर उन्होंने सिर्फ बताया बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ फूड दे रिफ्यूज टू टेक दी फूड। तो हमें जो रिकॉर्ड्स हैं, जो रिटन एविडेंसेस हैं, वो कहीं कहीं एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में नहीं बताते। तो स्टूडेंट्स अच्छे से वीडियो सुने और फिर लेसन को रीड करें। जैसे हमने मार्क किया है ऐसे आपने मार्क भी करना है, और वर्कशीट को नोटबुक में करें और गिवन डे पर आप हमें सेंड करेंगे एंड आल्सो लर्न इट। स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, maintain social distancing, wash your hands again and again. Thank you. Have a nice day.